we are asking fake questions and the person is giving fake answers. Nobody has the time for real thing. What's the best way to treat our kids? We need to understand as parents to take our responsibilities seriously, because bringing up a child is not an easy job. It's building a future, it's building a community, it's building a lifestyle. आज 4 बच्चे अच्छे हैं, 4 के 8, 8 के 12, 12 के 24. They will create a community. They'll actually create a society. How much effort you have put as a parent to get or to make sure that your child is good. आपके हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ का मतलब क्या है आपके हिसाब से? लोग तब सुनते हैं जब आप ऑथेंटिक हो, जब आप उनको वो बताना चाहते हैं कि भाई आज तुम्हें तकलीफ है, कोई बात नहीं, हमने भी तकलीफ सही है, हम भी गिरे हैं मगर हम उठे हैं. सो अगर आप गिर भी जाओगे तो कोई नहीं, हम आपका हाथ थाम लेंगे. व्हाई पीपल आर फील लोनली? कई बार आजकल खासकर भीड़ में भी लोग अकेले हो जाते हैं. रिलेशनशिप की बात करें तो आपको क्या चीज़ जो लगता है अभी पूरी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी प्ले करता है? मुझे लगता है इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट इज द रिलेशनशिप. इट्स अ लव एंड द ह्यूमन कनेक्शन टू ईच अदर, एंड दैट इज द मोस्ट precious thing in this art we have. Unfortunate truth is we are abusing this. Yes, we are. It's so bad. It is extremely sad. तो पैसा जो है ना, पैसा लोगों को से मुझे लगता है कि पैरालाइज कर देता है. Hi Shepali ma'am, welcome to the Open Talk Show. Thank you so much. You're welcome. It's been long time. हमने ये planning कर रहे थे. Finally you're here. Sure. Okay, so about this episode, I have following your journey. Quite interesting, which is I love that inspirations. So all of the things which is I found generally it's very very interesting to have the person in our show. Okay, obviously, discuss about the real experience about yourself, about your motive. So all of the thing inspired me to call you again, and today here we are. सबसे पहले मुझे जानना है, you help other people, okay? Humanitarian में काम करते, social work करते आप. What is this and what is all about? क्या है वो? ऐसा होता है, let me just take you in a way, let me explain it to you. पहले के ज़माने में हम बड़े घरों में रहते थे, जहाँ पे सारे रिश्ते थे. अब घर छोटे हो गए, रिश्ते हो गए कम. So somebody has to step in and say that I will look into it. And I think that's my role. Oh. So what happens is when people need somebody to talk to or they want a listening ear, I'm there. बच्चे होते हैं, they come and talk to me. बड़े होते हैं, वो भी अपनी बातें करते हैं, क्योंकि कई बार उनके पास कोई सुनने वाला नहीं होता. And then कई बार ऐसा होता है कि I sit and explain to different women or people coming from a different sect of society who want to listen to me and understand where are they going wrong or what right direction should they take. It is not just my experience. It is also the number of years that I have spent in my field. I have been closely associated with some kind of schools, some kind of community services. Okay. So उसमें क्या होता है, जब आपको लोग तब सुनते हैं जब आप ऑथेंटिक होते हैं, जब आप उनको वो बताना चाहते हैं कि भाई आज तुम्हें तकलीफ है, कोई बात नहीं, हमने भी तकलीफ सही है, हम भी गिरे हैं मगर हम उठे हैं. सो अगर आप गिर भी जाओगे तो कोई नहीं, हम आपका हाथ थाम लेंगे. एंड दिस टू शैल पास. सो आई थिंक जब सोसाइटी में आप एक दूसरे का साथ देते हैं, वी आर ऑल सोशल बीइंग्स. वी आर नॉट टू बी staying like islands or in isolation. Right. So अगर आप एक दूसरे का साथ देते हैं, automatically the community is a better place to be in. True. Right. Okay. So I have a few question over here. Okay. मुझे जानना है generally. It's not okay. मेरे लिए podcast is not just a podcast. It's a conversation also. Okay. Of course. Okay. आपके हिसाब से what is the meaning of life? Life का मतलब क्या है आपके हिसाब से? लाइफ का मतलब
दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन. लाइफ में अगर आप मीनिंग ढूंढेंगे ना तो ढूंढते ही रहेंगे. Okay. It is all about your inside, and every inside is different. True. When your inside and outside has got minimum difference, that's when your living is an authentic living. True. मेरा purpose या मेरी journey in this world is different than yours. So we all need to find our purpose in life. So how, like, in general, as a human we are, right? So obviously every second mind have a different thoughts. Of course. Okay. But in general we discovered we are human. Okay, we can control us, even we can sometimes control other animal as well. Yes. Maybe not the other human because they have a mind like us. Yeah. But other animal we can control. So in that way human life पे भी, okay, for better life, ह्यूमन लाइफ पे भी ऐसा होता है कि हम अपने आप को कंट्रोल जैसे करते हैं, तो हमारी लाइफ में भी एक वो है कि हमारे पास एक पावर है टू लीव ए बेटर लाइफ. वो क्या है आपके हिसाब से, कि किस तरह से हमें सोचना चाहिए एक बेटर लाइफ, अच्छे से लाइफ को बिताने के लिए एज अ ह्यूमन? Now there are many aspects to this. Okay, tell me the one which is you really like it. See, one thing is knowing something, and there is something called doing. People think knowing and doing में confusion है उन्हें. उनको लगता है मुझे आता है तो मैं हो भी जाएगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है. True. Knowing is, आपको पता है कि, like, let me give you a very small example. You know that if you get up in the morning, that's the best thing ever. Or if you exercise, that's the best thing ever. That's your knowing. But are you doing it? So there's a gap. In that gap, you need to understand, you need to rework on your own self. Correct. भाई जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं होता कि जब हमें डॉक्टर आके बोले तब हम कोई चीज़ करें. पर अगर आपके लिए कोई चीज़ ज़रूरी है, और अगर आप कॉन्शियसली अपने आप को जैसे रेडियो को ट्यून करते हैं, उसी तरह अगर आप अपने पे फोकस करके अपने आप को ट्यून करें, यू कैन minimize that gap of knowing and doing. True. I think that is very important aspect in life. Many people think, अरे मुझे पता है. पता होना और करना सेम नहीं है. Okay, see, I'm gonna ask in this here also कि for example I know something कि मुझे अपने फैमिली को बेटर बनाने के लिए, या हमारी फैमिली में थोड़ी टॉक्सिसिटी है. मैं आपको पूरा ह्यूमन के एक्सपेक्ट की एक सोसाइटी के बेस पे बात कर रहा हूँ. Of course. Okay? Because you might heard lot of stories also. Of course. मुझे लगा. ठीक है. तो एक फैमिली में थोड़ा टॉक्सिसिटीज है. ओके, तो मुझे एक एक्सपेक्ट बताओ कि लाइक एक फैमिली में मान लो 5 लोग हैं, मॉम डैड, ओके, एक बच्चे की शादी नहीं हुआ, ओके, और देयर इज अनदर वन, ओके, जिनका मतलब हस्बैंड वाइफ है. यहाँ पे थोड़ी टॉक्सिसिटी है. ओके, मान लो जिनके साथ शादी हुआ है बच्चों को, उनके और द रेस्ट ऑफ द फैमिली. ओके, तो एक फैमिली में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या बॉन्डिंग होना चाहिए एज अ पर्सन, एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन. ओके, एक्सपेक्ट ऑफ मनी, फाइनेंस, एक्सपेक्ट पैसा, रिश्ता, चाहत मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है. ओके, एक्सपेक्टेशन, तो वो सारी चीज़ों को रखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या पर्टिकुलर चीज़ को हम देख के चलना चाहिए, जो कहते हैं ना कि एक सोचना और करने से, मुझे ये जानना है बस. हमारे पास समटाइम वी नो द थॉट कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है. ओके, क्योंकि हमें लगता है कि होगा नहीं. तो आपके हिसाब से क्या है? सी, सबसे easy way of working out things is conversation. Okay, conversation. So conversations are very important for any good connect. True. When you have a problem with someone, suppose I have a problem with you, Shaheen, but जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? Yeah, I think that is the only one way to live better life. That is the communications. Very important. Communication, conversation is the most important thing. Conversation है तो रिश्ता है, conversation नहीं है तो रिश्ता नहीं है. एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, आप रिश्ते की बात कर रहे हैं. एक रिश्ते जब नया भी जोड़ते हैं ना, वहाँ पे कन्वर्जेशन ही होती है. बिल्कुल. I like that. Yeah, that's a fact. I believe in conversations.
वो मैंने निकाला हुआ है एक जुगाड़ सिस्टम व्हिच इज कन्वर्सेशंस, कम्युनिटी and creativity. They all go together. It sounds so beautiful that कि जब अरेंज मैरिज की बात होता है, देयर इज अ टू पेरेंट्स, एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ओके, वो साथ में बैठते हैं, ओके, वो साथ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की अच्छी बुराई या चीज़ें पे देखते हैं, सही लगता है उनको, बात करते हैं, सही लगता है, फिर उसके बाद भी थोड़ा पीछे पीछे भी क्रॉस चेक करता है कुछ लोग, ठीक है, कि ये सही है गलत है, फिर उसके बाद रिश्ता जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ने के बाद एक फैमिली बनता है, बिल्कुल, ओके, एंड उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. तो इट्स अ सो ब्यूटीफुल थिंग दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशंस. लाइक आपने जैसे बताया, इट्स अमेजिंग. सुनने में समझने में भी बहुत खूबसूरत लगता है ये. भाई वो कहते हैं नए रिश्ते कैसे बनते हैं, बातें होती हैं तो नए रिश्ते बनते हैं. आप बिजनेस के लिए भी निकले, तो जब तक आप बात नहीं करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट को बेचेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो बायर खरीदेगा क्यों? Interesting. I love that. Conversations and communication is very important. Yeah, I think this is, when I said that कि हम माइंड है, हमारे ह्यूमन माइंड एंड एनिमल्स वी कंट्रोल, यहाँ पे मुझे लगता है ये अप्लाई होता है. यू ओनली हैव अ वन थिंग दैट इज अ कम्युनिकेशन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. या, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कई बार आजकल खासकर भीड़ में भी लोग अकेले हो जाते हैं. Damn, so true. भीड़ में भी लोग अकेले हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग. ये इसीलिए डिप्रेशन हो रहा है. हाँ, इट साउंड्स सो ब्रोकन. इट्स अ फैक्ट. शाहीन, अब हम एक कमरे में बैठे, आप भी बैठे, मैं भी बैठे, हम बात कर रहे हैं, तो कॉन्वर्सेशन हो रही है. Yes. आप मेरे बारे में सीख रहे हैं और मैं आपके बारे में. बिल्कुल. मगर अगर हम यहाँ बैठ जाएं और हम एक दूसरे से बात ना करें, तो हम एक दूसरे के बारे में क्या जानेंगे? I think we're gonna lost in our own universe. Absolutely. फिर उसके बाद हमारे डिस्कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. फिर वो इतना दूर हो जाएगा कि हम उसके बाद बात करना ही नहीं चाहेंगे. Correct. This is what is happening even in relationships today. People are getting distant by कई बार ऐसा होता है, माँ बाप बच्चों के साथ बात नहीं करते जब वो बच्चे छोटे होते हैं, when they are growing, especially when they need them. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी कोल्ड ट्रीटमेंट दे देते हैं. Okay, I'm going to ask this question here in the same way. Okay. Yeah. आपकी हिसाब से एक फैमिली में, okay, किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए एक माँ बाप के बच्चों के साथ, या बच्चों लाइक हस्बैंड वाइफ के साथ, और एक बेटा एक बेटी के साथ, एक बेटा के साथ, इस तरह से? How do you define? आपको क्या लगता है? See, this is a topic very close to my heart. हाँ, I love to hear that. Only, you know what? Why I'm asking, because I know that you're too close to this. This is very close to my heart. I love to talk about that. Because I have a family, and my most beautiful role that I play is of a mother. I have a son who's 21 years old. मगर वो 21 अब है, बचपन में तो छोटा ही था. Correct. So मैंने कभी उसका काम किसी और को करने नहीं दिया. Okay. I always did it on my own. I had help. Help also helped me. But there was constant conversation. I was there when he needed me. Even now, I am there when he needs me. One call from him, I drop everything. I still remember there was this one instant in 2018. Clearly, I remember. I was here and my son was somewhere else at that point of time. So he called me up and I was in a meeting. Believe me, I stopped the meeting and I said, I have to take this call because this is the most important call for me in my life. So it just took me 2 minutes. I took the call, spoke to my son, and I disconnected. This is to show him Mama is there all the time. Beautiful. दुनिया रुक सकती है, चीज़ें रुक सकती हैं, आपको अपनों के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है. एज पेरेंट्स आई कैन ओनली टेल यू, जब आप स्नैप करते हो ना पेरेंट्स बच्चों की, लाइक दे गेट एंग्री एंड दे गेट अपसेट, और कभी कभी लोग थप्पड़ भी मार देते हैं.
that is your shortcoming, not the child's. Because बच्चे ने बदमाशी करनी है, शरारती करनी है, उसके पास 1000 सवाल होंगे. It's bound to happen. He's a child. He has to be curious. Yeah. But you should have the patience to answer those questions. True. You know, एक कहावत भी है ना, एक मतलब कहावत नहीं, लोग कहते हैं कि आपकी माइंड भी आपको ग्रो करते हैं एज के साथ. बिल्कुल. एंड एक और बात बताता हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे ये बात है, एक हमारी माइंड ग्रो करते एज के साथ, सेम हमारी माइंड जो है ना फॉरगेट करते हैं बाय द एज के साथ. Right. आपको पता है, इफ यू नो योरसेल्फ, ओके, आप आज से 25-30 ईयर्स पहले आपको आपकी जो मेमोरीज थे, आई एम श्योर यू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द वे यू लिव completely. Of course you don't remember. Okay, not exactly the same. Yeah, okay? yeah. But अगर आप 5 साल की बात करें, you might do. Yeah. Okay, so what I mean कि आपकी मेमोरी भी धीरे धीरे कम होता है. Okay? Not that, पता है कौन सी मेमोरी स्पेशल होता है आपके लिए? जो आपका गुडनेस है. Yeah. Okay, वो वाला. Yeah. जो आपको क्या बोलते हैं, गूस बम्प देते हैं लाइफ में. जनरली इट्स नॉट अबाउट कि गूस बम्प देने के लिए आपको ये आए, बट आपको इनसाइट हैप्पीनेस जो देता है बोला. तो मेमोरी जो होते हैं हमारा वो होता है. So, मुझे लगता है कि हमें हमारी मेमोरी इस तरह से है. तो एज भी एक फैक्टर है जो आप अपने बच्चों से ज़्यादा समझदार होते हो. ओके, एंड ऑब्वियसली इवेंचुअली दे नीड यू, राइट. मुझे ऐसा लगता है. एंड यू हैव टू लिसन. इवन आई माई सेल्फ व्हाट आई डू, ओके, मेरे साथ अभी क्या है, मेरे पेरेंट्स नहीं रहता है, बट मेरे रूममेट्स हैं. Okay, I let them know clearly. If I called you guys any time, that means I need you. Of course. Maybe I'm gonna tell you something, maybe anything it could be, okay? But do not avoid my call. Yeah. Okay. It's very and important. I think it should be have in the family factor as well. Yeah. There is many parents got children, not only children, there's many people are avoiding calls from their family, their parents calls avoiding. For them it's a very very heartbroken. It is. आपको मैं बताऊं, मैंने खुद केसेस देखे हैं शाहीन. People are dying to tell you something, but they don't have anybody मतलब उनको जिनकी ज़रूरत है वो लोग वहाँ नहीं है. वो आपने जो बात बोली बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. सिर्फ 2 मिनट की शब्द होती है, 2 मिनट. ओके, मे बी से हाँ या ना. ओके, लाइफ में पता है क्या, लोगों को लगता है पैसा पैसा पैसा. इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट. पैसा आज रहे कल नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैमिलीज इन आवर सोसाइटी. सम ऑफ वेरी वेल रिच, सम ऑफ इन मिडिल क्लास, सम ऑफ इज वेरी लाइक इन द डाउन, लाइक थोड़ा गरीबी में रहता है. बट सी द हैप्पीनेस हु होल्ड द मोस्ट. जनरली द पोरेस्ट वन, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके अंदर जो बॉन्डिंग होता है ना रिलेशन में, बहुत स्ट्रांग वो एक रिच फैमिली में नहीं होती है. बिल्कुल, आई एग्री विद यू. सो आई वुड से डू नॉट रन फॉर मनी, रन फॉर द ह्यूमन कनेक्शन. एंड दैट इज द वन ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट द ह्यूमन. I would say that is the only one part. You're absolutely right, शाहीन. पैसा जो है किसी हद तक ज़रूरी है. उसके बाद if you ask me, it is the relationships that matter. Correct. आप बीमार हो, पैसा आप जितना मर्जी खर्च लो, कंपनी तो नहीं हो जाएगी, कंपनी तो नहीं मिलेगी. इस बात में मैं ये बोलूँगा, टीम वर्क जो होती है ना, वो ज़्यादा हेल्प करता है टू ग्रो फास्टर देन इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग. बिल्कुल सही. जब हम टीम में होते हैं, जब हम साथ मिल के काम करते हैं, इवन आप जब, ये तो काम की बात छोड़ो, जब आप घर में होते हो, 4 लोग जब खाना बना रहे होते हैं, एक काट रहा होता है, एक तड़का मारता है, 4 चीज़ें और करता है, खाना कितनी जल्दी बन जाता है. True. और गप्पे मारते हुए पता भी नहीं चलता. बट द थिंग इज व्हेन इट्स ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ, मैं ही करूँगा, मैंने किया है, दिस इज व्हाट आई हैव डन, ये आई आपको खा जाता है. True. We have to shift from I to we. Even sometime ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है I myself,
मैं तो उस इंसान को ये बोलूँगा, वाई? बिकॉज यू आर बेटर देन अदर पीपल. Okay, you have to let other people know that you feel in that way. Communications is coming here. Yeah. Okay, and maybe they hurt if you're good. Okay, then they will carry forward with you. Absolutely. मुझे लगता है ऐसा. बहुत ज़रूरी है because to do more or achieve more also you need more people together. वो कहते हैं पिरामिड बनाने के लिए भी you need people together. एक आदमी पिरामिड नहीं बना सकता. So one needs to understand that together we can achieve far more than being by ourselves. Correct. In teamwork. You know, when I talk about teamwork. अगर फैमिली में तो ये मैम बहुत सारे जो टॉक्सिसिटीज होती है, आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस दैट? कम्युनिकेशन के अलावा अगर आप बात करें. हाँ, आई अंडरस्टैंड. टॉक्सिसिटी सबसे पहले तो फर्स्ट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई इन सेंस आपको पक्का पता है कि भाई ये आदमी ए या बी ये नेगेटिव है, ये बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. जब आपको एक चीज़ किसी के बारे में पता होती है ना, फितरत अगर आपको किसी की पता चल जाती है, आपको उतना दुख नहीं होगा. आप रियलाइज करोगे यार ये बीमार है, यू नो इट्स ओके, एंड यू स्टार्ट यू नो मेंटली गिविंग सिग्नल्स टू योर ओन माइंड कि यार ये बीमार है, वी शुड सिंपथाइज विद हिम. क्या करें अब, बेचारा ही डजंट नो और शी डजंट नो व्हाट दे आर डूइंग. So you make them bichara or tell your mind कि यार something is wrong with the person. Then you don't feel that bad. आपको बुरा कब लगता है? जब आपको लगता है कि why is this person dealing with me like this? पर जब आपको पता है कि ये करेगा ही वैसा, तो आपको उतना दुख नहीं होगा. So true. कहते जब ना किसी को बीमार होता है, फीवर होता है ना, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. हाँ. लेकिन एक ह्यूमन जिनका माइंड सब कुछ सही चलता है लेकिन वो गलत चलता है, उसको लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, उसको बीमारी नहीं मानता. टाइम लगता है. समटाइम होता है कि आपको मानना चाहिए, मान लेना चाहिए. इट विल मेक योर लाइफ इजी. यू नो यू वोंट बी दैट स्ट्रेस्ड. करेक्ट. यू वोंट बी दैट स्ट्रेस्ड. आप एक बारी माइंड बना लिए कि यार ये ऐसा ही है, आपको उतना दुख नहीं होगा. मगर आपको दुख तब होता है जब आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते. बट एक्सेप्टेंस मेक्स इट इजियर. ट्रू. Okay, how does this kindness play a role, I mean, in the relationship? Kindness is a very important thing in any relationship. Kindness is actually withering away in our society. हमारे पास काइंड होने का टाइम ही नहीं है, जबकि होना चाहिए. We should be kind, we should be empathetic, we should realize, we should always try to keep ourselves in somebody else's shoes. मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, आप मेरा आंसर समझ जाओगे शाहीन. yes. मैं तुमको बोलती हूँ how are you, तुम क्या जवाब दोगे? Yeah, I normally said I'm good. Yeah. Even if you're not good, you'll say I'm fine. That should not but be. If in a mood you start telling me नहीं मैम आज ऐसा हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, आप देखोगे सामने वाला बंदा या बंदी within few seconds will say okay अच्छा okay and move on to something else. That is so true. We are asking fake questions and the person is giving fake answers. Nobody has the time for real thing. We talk about kindness but we are not really kind. That's because people like, you know, आपने एक बात बोली ना कि भीड़ में भी लोग अपने आप को अकेला पाता है because they don't present themselves. That is why there is so much depression right now. Why are people committing suicides? Youngsters, अरे they have the most rocking life if you ask me. ना पैसे देने मिल रहे हैं, माँ बाप पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ यू, खाना मिल रहा है, पहनना मिल रहा है, लाइफ मिल रही है, सिर्फ तुमने पढ़ना है और आगे बढ़ना है. उसके बाद इफ यू आर जंपिंग ऑफ अ बिल्डिंग और किलिंग योर सेल्फ, व्हाई? हैज टू बी अ रीजन, राइट? या ट्रू. ओके मैम, एक बात बताइए, आप आपने बहुत सारी सोसाइटी में अलग अलग चीज़ें देखी होगी. कैन यू जस्ट ब्रीफली से फ्यू वर्ड्स यू ऑब्जर्व इन पीपल सोसाइटी में जो कि बहुत पॉजिटिव है और जो बहुत नेगेटिव है? आपने क्या देखा इन दो? देखो, जो पॉजिटिव होते हैं ना,
वो तकरीबन एट पीस रहते हैं एंड दे ऑलवेज फाइंड समथिंग पॉजिटिव इवन इन अ नेगेटिव सिचुएशन. ऐसा नहीं है कोई गिरता नहीं है, गिरते सब हैं अपनी लाइफ में. कोई ऐसा नहीं है जिसके रोलर कोस्टर राइड नहीं होती है. भाई अगर स्ट्रेट लाइन होती है वो तो एक ही बार होती है जिंदगी में जब आदमी रहता ही नहीं है. But otherwise it's a roller coaster ride. We are going to fall. We will fail. But the whole idea is getting up every time you fall down. Trying makes you better person. But अगर आप सोचो ओहो अब तो मैं फेल हो गया, अब तो मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई, this is a negative outlook. Obviously it is. So to be a positive person, you have to take things in a positive stride. So you means people are not positive enough. They're not positive enough. Okay. You know, एक तो सबसे पहले तो ये बात है जो मुझे समझ में आती है, वो ये है कि लोग किसी रेस में हैं. कई बार उनको खुद ही नहीं पता होता उनकी रेस है क्या. True. अब भाई ये और ये लोग भाग रहे हैं, चलो मैं भी भागता हूँ. अरे भाई क्यों भाग रहे हो, पता तो करो. उनका तो कोई पर्पस हो सकता है, तुम्हारा तो पर्पस भी नहीं है. मगर बिकॉज योर पर्पस इज नॉट क्लियर, यू आर रनिंग. बिकॉज पीपल थिंक सडनली नाउडेज दैट रनिंग इज द वे टू बी, टू डू इज द मोड. देयर इज नथिंग लाइक रिलैक्सिंग. यू नो, एक टाइम में लोग टाइम निकालते थे कि हम कुछ करेंगे. Right. अब उल्टा है. अब क्या है मैम? अब हमेशा ही कर रहे हैं. True. मतलब मैं कितने बच्चों को जानती हूँ जो स्कूल फिनिश करते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल फिनिश करते हैं, आधा घंटा उनको खाने के लिए मिलता है, उनके पेरेंट्स उनको ट्यूशन्स के लिए भेज देते हैं. 1 2 3 4 ट्यूशन करेगा. अरे खाली ट्यूशन, अरे इसको तो फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, इसको बैडमिंटन के लिए भेज दो, इसको लॉन टेनिस के लिए भेज दो. वो बेचारा बच्चा थका हुआ नहीं टाइम नहीं दे सकते उसको, कि उसको हम टाइम नहीं दे सकते. इसको एक लैंग्वेज क्लास ज्वाइन करा दो, इसको चाइनीज सिखा दो, इसको फ्रेंच सिखा दो. That should not be. I have seen with my own eyes. Trust me. As a child, that's maybe they did not realize, but I generally feel it's a very, very painful thing. It's a very painful thing, and one of the most important things is, Shaheen, and one of the worst thing doing as a parents. Yeah, you have to give free time to a child, because in that free time, the kid, you know what he does? I'll tell you. His creativity grows. Imagination grows. Yeah. आपने तो उसकी creativity खत्म कर दी है. I would say this is doing by the parents, like जो अपने बच्चों को बेटर बनाने की कोशिश करता है. नहीं, it's the society pressure. अच्छा. भाई मिस्टर कपूर का बच्चा कर रहा है तो हमारा बच्चा भी करेगा. मेहताज ने अपने बच्चों को उधर भेजा है तो हम भी भेजेंगे. कुछ लॉजिक नहीं है. Got it. You know? लॉजिक नहीं है. इवन बच्चों पे तो इम्पैक्ट पूरा ही पड़ेगा. बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. इसलिए मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मामले में कुछ सक्सेसफुल जो आते हैं ना, सक्सेसफुल पीपल और काम, अगर आप देखोगे आज के टाइम में भी, there is a few of successful people come from the place where people are not getting that much of care. That's because they have the fire in the belly. उनको हर चीज प्लेट में सर्व करके नहीं मिला है. That's why they have that fire. You know, today's generation also, you know, quite bit similar, because you heard that maybe जो Gen Z है, okay, इनको ना ये न्यूज़ में भी आया, and I'm being surprised कि they are like one of the part of like us. एक टाइम में हम उस एज में थे, उसी टाइम में इस तरह से जॉब ढूंढते थे जैसे वो लोग आज ढूंढ रहे हैं. So they got hire and fire. Okay. हाँ, मोस्ट ऑफ द केस में देखा. और कुछ में जो ऑब्जर्वेशन किया है उनके बारे, वो ये है, दे हैव अ इंटेंस ऑफ इमोशन, दे आर सो क्रिएटिव एंड दे वांट टू डू एंड दे विल क्रिएट इमीडिएटली एंड दे विल, हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ. या इस तरह का होता है. पर जो हमारे टाइम में तो वी वर्क स्लोली, मतलब तब की बात अलग था. Now we are also adopting a lot of things from the, obviously. No, we also have to adopt things from
the new generation. नहीं तो we will become obsolete. Correct. But at the same time, we also need to give our education to the children so that they are rooted. Correct. It's very important for the child to be rooted. It's like, I can give an example of a tree. जो ट्री ट्रंक से मजबूत होता है वो आसानी से हवा में नहीं टूटता. बहुत तूफान भी आएगा तो भी नहीं हिलेगा, मगर टूटेगा नहीं. पर अगर आपका ट्रंक ही कमजोर है, ट्रंक आई मीन इज फैमिली, अगर वहीं से आप कमजोर हो तो 2-4 हवा के झोंके में आपने टूटना ही है. सो दैट फैमिली बॉन्ड, दैट स्ट्रेंथ comes from the roots, you know. True. And that's why I think it's very important for us as parents to tell our children, I am there. Yeah, एक चीज़ है मुझे ऐसा लगा जो हम बात कर रहे थे अभी, जो जेनजीज के बारे और ये पेरेंट्स के बारे. आप इफ़ यू सी वाई दे आर लाइक दिस, मुझे ऐसा लगता है उसका कारण ये है, एज अ पेरेंट्स, ओके, आज जो बच्चे हैं 20 एज ऑफ 20 और अन एज 25, दे बॉर्न इन 20s. 2000 में बॉर्न हुआ, राइट? सो इन दैट टाइम ना, जो बच्चों को जो केयर, ओके, द केयर जो चाहिए वो मिला है उनको. उन्होंने कभी सर्वाइव ही नहीं किया, इसलिए उनकी मेंटालिटी भी इस तरह से ग्रो किया है कि हो जाएगा ऐसा ऐसा, हम कर लेंगे. उनका इमोशन भी इस तरह से ही है. Do you agree with that? I agree with you. You know, I will tell you, when I got my child, I don't know where I read about it, about a crib death, that many people, many kids, die in a crib. वो सोते समय अपने ऊपर चादर ले लेते हैं, पता नहीं चलता. वो न्यूज़ जानने के बाद I became hyper. मैं बड़ी हाइपर. मैं जब सोने लगता था मैं दिखती रहती थी, सो रहा है ठीक है, कुछ ज़्यादा सो लिए तो मैं ऐसे से, ठीक तो है बेबी, ठीक तो है. मैंने कुछ टाइम अपने बच्चे को, काफ़ी टाइम तक एक्चुअली, गिरने नहीं दिया. आई मीन आई वाज, वो चलता भी था, मैं पीछे 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 कहीं गिरना जा गिरना. ओके. बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड, शाहीन, एंड मुझे शर्म नहीं है बताने में, क्योंकि मैंने जब लेट सीखा तब मैंने सोचा नहीं, मैं बाकियों को भी इसके बारे में बताऊं. मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैंने अपने बच्चे को गिरने नहीं दिया. बाद में मैंने सोचा मैंने इसके क्यों नहीं गिरने दिया. गिरता तो क्या होता, चोट ही लगती, उठ के हम कुछ कर लेते, स्ट्रॉन्ग बन जाता, खुद ही उठने की कोशिश करता. इट टुक मी सम टाइम टू रीवायर माई ओन माइंड. एंड नाउ, आई मीन, after so many years, I'm a changed mother. Because I worked on myself. I did not want कि मेरे fears मेरे बच्चे में जाएं. And today, he's a trekker. He's a trekker. He's a diver, a certified diver. I mean, imagine, he would have never been able to do these things if I stayed in fear and I also made him live in a fear. It didn't make sense. So I think as a parent, our job is to अपने बच्चों को थोड़ा टफ बनाओ, उनको बेसिक लाइफ कैसे जीते हैं वो बहुत ज़रूरी है. लाइफ स्किल्स देने बहुत ज़रूरी हैं जो हम नहीं देते, जब हमारे बच्चे छोटे हैं. I would say this is one of the reason to doing a podcast as well. घुमा फिरा के बात ये है मैम, ओके, हमारी माँ बाप हमें सिर्फ एजुकेशन दिया है, हाँ, to get a job. Yeah. Okay. True. Not that what are the society, how the way you should face. ज़रूरी है. Okay. And क्या consequences हो सकता है, लोग किस तरह से होते हैं, उनके साथ किस तरह से बिहेव. मुझे ऐसा भी लगता है कि ये हमारी ना एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए. अनफॉर्चुनेट ट्रूथ इज, मुझे अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम समझ नहीं आ रहा. सेम हियर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा. ऐसी कौन सा गवर्नमेंट एजुकेशन है जो एक्चुअली प्राइमरी एजुकेशन है, कौन सी प्राइवेट एजुकेशन है जो एक्चुअली प्राइमरी एजुकेशन है, या जो गवर्नमेंट पढ़ाते हैं क्या ये प्राइमरी वाले पढ़ाते हैं? नहीं. दैट इज सो डार्क
मतलब क्या बोलूँ मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ कि इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि बच्चा अच्छा बने। हाँ आप वो क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ओके जब एक गवर्नमेंट का किताब बनाया, एक वो किया रिवील किया, तब एक अलग वे में उन्होंने डिज़ाइन किया बुक को टू धीरे धीरे बच्चा ग्रो करे अपने माइंड को। राइट लेकिन अब प्राइवेट आने के बाद देयर इज सो मेनी थिंग अपग्रेडेड, दे हैव जस्ट क्रिएटेड फॉर द अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन सिस्टम है वो कमर्शियल हो गया। दिस इज इट्स अ सैड थिंग इट्स अ वेरी वेरी बिकॉज सैड जब थिंग। हम छोटे थे, आज भी मैं अपने टीचर को कभी देखूं या मिलूं या कभी हम लोग बात करते हैं तो हम लिटरली खड़े हो जाते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हमारे सर हैं, हमारे सर ने इतनी Correct, किताबें correct. लिखी, एक अलग रिस्पेक्ट है कंप्लीटली। आजकल जो बच्चे हैं उनको उस टाइप की फीलिंग अपने टीचर्स के साथ नहीं है। उसकी दो वजह हैं। वी कैन नॉट ब्लेम द चिल्ड्रन बिकॉज बच्चों को भी समझ आ गया है कि मेनी थिंग्स आर कमर्शियल। ट्रू। दूसरी बात ये है कि टीचर्स भी वही सिखाते हैं जो ज़रूरी है, क्योंकि बाद में वो ट्यूशन ले लेंगे। सही बात है। और तीसरी बात ये है दैट स्कूल्स इतने ज़्यादा कमर्शियल हो गए हैं, इतने ज़्यादा कमर्शियल, दे डोंट रियली केयर कि बच्चा कैसा कर रहा है या बच्चा खुश है कि नहीं है। रैंडम चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं जो एक्चुअली 10वीं के बाद उसको काम भी नहीं आनी। मुझे एक कंसर्न है इसमें, ओके जब स्कूल में एक बच्चा टीचर के बजाता है तो फिर ट्यूशन लेने की क्या ज़रूरत है? राइट, बिल्कुल। मैं कभी भी टॉप स्टूडेंट नहीं थी, ओके, बट एट द सेम टाइम हमने अपने डाउट्स क्लास में ही क्लियर करे। हम ट्यूशन टीचर क्यों है वो? टीचर क्यों है भाई? मेरा एक सवाल है, अब तुमको मैं बोलती हूँ, तुम बताओ, अगर मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मैं 95 लाता हूँ और तुम टीचर हो और तुम मेरे ही पीछे पड़े हो और मेरे को ही थपथपा रहे हो कि वाह वाह बेटा तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। अरे भाई मैं तो पहले ही ब्राइट था, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? मज़ा तो तब आए आप 50% या 45% वाले को उठा के 70 तक लाओ, तब मैं मानूं। इंटरेस्टिंग, या अब कोई आदमी सुंदर है, ब्यूटी पार्लर वालों का क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? कंट्रीब्यूशन तो मैं तब कहूँ ना जब कोई इतना सुंदर ना हो तो आपने उसको बड़ा कुछ अलग ही बना दिया, तब आपका हुनर दिखेगा। सो सिमिलरली स्कूल वाले भी क्रेडिट उन्हीं बच्चों का लेते हैं जो ऑलरेडी टॉप में हैं। Got it. Okay. Things should change in sense, Shaheen, I really think life skills हमारे बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लाइफ स्किल्स बचपन में नहीं सिखाते। Okay. Yeah. वो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप जैसे ही बच्चा बड़ा होता है वो कहते हैं अरे तू इतना छोटा सा डिसीजन खुद नहीं कर सकता। वो बेचारा बच्चा कैसे करे, आपने बचपन में तो सिखाया ही नहीं। आपने लास्ट 20 ईयर्स में बहुत सारी चेंज देखी है। हाँ राइट। चलिए मैं आपके बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए मैम, ये जो आने वाले हमारा 15 साल है, लाइक मान लीजिए 2040 तक, ठीक है, आपको क्या लगता है हमारे समाज किस तरह का होंगे? ओह आपकी नजरिया आप क्या बोलती है? वेल मैं कुछ क्या कहूँ, मैं जो आपको परेशान लगता भी है। हूँ इस बात को लेके। Are you scared about that? I am to a certain extent because as parents, many parents have not done their homework well. जब आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत होती है, कंफ्यूजन है या वो कुछ गलत कर रहा है, आपको एज अ गाइड, एज अ मेंटर उसके साथ बैठना है। पार्टी में नहीं होना। यू हैव टू बी देयर टू रन अ गुड एंड अ हैप्पी फैमिली। यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, especially for your child. I did it. When my son was growing up, there are many things I said no to. Because I knew it is far more important for me to be with the child than be anywhere else. I had options, but at the same time, I'm not regretting it. I'm very happy. आज जब उसको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो मैं उसको पर्सनली एज अ कॉम्प्लीमेंट समझ के लाइक अ बैज पहनती हूँ। इंटरेस्टिंग, या इट शुड बी, यू प्राउड। आपका बच्चा एक सर्टेन एज होती है,
when the child is constantly looking at you, Hmm. not at what you are saying, but what you are doing. True. आप बच्चे को बोलते हो झूठ मत बोलो, और कुछ देर बाद बच्चा देखता है कि आप अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, अरे वो आएंगे तो उनको बोल देना मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, वो देखेगा. वो ये नहीं सुनेगा कि आप कह रहे हो कि झूठ मत बोलो. आप कैसे अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चा वो देखेगा. वो ये नहीं सुन रहा है कि प्लीज टॉक नाइसली एंड बी पोलाइट टू योर पेरेंट्स और टू योर एल्डर्स. नो. How are you behaving with your parents? So kids are always looking at how you're behaving rather than what you are saying. There's a world of difference in that. A world of difference. And for that, parents have to be coached. True. मैं बहुत जगह बोला है कि more than children, parents have to be coached. Parents जो होते हैं माँ बाप के जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं. That's not possible, But we need to understand as parents to take our responsibilities seriously, because bringing up a child is not an easy job. It's not easy, yeah. It's building a future, it's building a community, it's building a lifestyle. So true. आज 4 बच्चे अच्छे हैं, 4 के 8, 8 के 12, 12 के 24. They will create a community. They'll actually create a society. How much effort you have put as a parent to get or to make sure that your child is good. Okay, I have a question here. मुझे मैम एक बात बताइए. So हम अपने बच्चों को फिर कैसे ट्रीट कर रहे हैं? What is the best way to treat our kids? See, there is no set pattern as such, but you need to understand, that is what I have understood. बच्चा छोटी ही उम्र से सब समझता है. You should not treat child like a child. Treat a child like any human being, like an adult. Accordingly, but obviously, it's like जब बच्चा no बचपन से ही समझता है. When you say don't do that, no, वो समझेगा. तुम्हें लगता है कि बच्चा नहीं समझता, they understand everything. मैम मुझे एक बात बताइए कि हमारी जो चिल्ड्रन को हमें किस तरह से एजुकेट करना चाहिए? जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है, वी नीड टू कोच देम टू बी बेटर ह्यूमन बींग्स. ओके. बिकॉज जब तक हम गुड ह्यूमन बींग्स नहीं बनेंगे, तब तक एवरीथिंग एल्स इज फ्यूटाइल. Money will come, money will go. Jobs will come, jobs will go. But humanity is something that stays. It stays in the small acts of kindness that you do. When we talk about kindness, I think that's very important. वो कहते हैं ना कि भाई सारे jobs fill हो गए, किस चीज़ में अप्लाई करें? इस चीज़ में अप्लाई करें. To be a better human being में अप्लाई करें. Because when you're working on children, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 15 ऐसे. So like it'll become a community. And you'll have a better society. That's important. In the end, we want a better society for our children and for their children. But we have to work on it. हम एक ही दिन में आर्टिस्ट नहीं बन जाते. कुछ टाइम पेंट करेंगे, उसके बाद ही आर्टिस्ट बनेंगे. So we need to work towards it. अगर आपको किसी चीज़ में अच्छाई चाहिए, ठीक है, तो आप उस पर काम करना पड़ता है ना. वो कहते हैं कि भैया मैंने अपनी चवन्नी फेंक दी, पानी में फेंकी, तो छर से रिपल्स क्रिएट होते हैं. वो क्या है? इफ़ यू पुट पॉजिटिविटी के रिपल्स ही होंगे. नेगेटिविटी डालोगे तो नेगेटिविटी होगी. सो यू हैव टू चूज योर ओन चॉइस. Okay. That's important. And my worry is that if we can give that kind of good time to our children, only then there is a possibility that something good will turn out. Otherwise, so अच्छा, be it. एक बात बताइए. When you were as a kid, okay, and I myself as a kid, okay, I born in the 90s. So 90s में हमें ना हमारी दादी नानी कहानी सुनाया करते थे. Unfortunately आज की जनरेशन को वो नहीं मिलता है. Okay, so how मतलब इस तरह की कहानियाँ कितना सुनाना
कितना रोल प्ले करता है एक बच्चों पे हो, मतलब कितना रोल प्ले करता है, और सिखाना है तो किस तरह से हो? बहुत रोल प्ले करता है। हमने भी नानी नानी, दादी, दादा, नाना सबसे कहानियां सुनी है ना? हैं। सो आई थिंक हाँ, इट वाज बिल्कुल, ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल। एंड यू नो वो रात के समय में ऐसे लेटे हुए हैं और वो कहानियां सुना रहे हैं और हम इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच गए। वो राजा था, वो रानी थी और वो उसके पीछे भागी और वो हाँ। घोड़े की आवाज आई। सो एवरी वो यू नो तारे जगमगाते हुए जुगनू, सारे कुछ हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता था। आजकल वो सब नहीं होता है। आजकल वो सब नहीं होता। सबसे पहले ये तो होना चाहिए राइट? हाँ, सबसे पहले तो ये है कि हम जो कहानियाँ कर रहे हैं हम किताबों से पढ़ रहे हैं। Okay? और हम कहानियाँ कौन सी पढ़ रहे हैं? लिटिल रेड राइडिंग हुड, सिंड्रेला, रॉबिन हुड, ऐसी कहानियाँ पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे अपनी कहानियाँ कैसे जनरेट करेंगे। जब मैंने R.K. नारायण जी की किताब पढ़ी तब मैं समझी, आई लव्ड इट बिकॉज इट स्पोक अबाउट द रूम विच वॉज पेंटेड ब्लू इन कलर। वो छोटा सा बल्ब, छोटी सी रोशनदानी में से लाइट आती हुई। आजकल बच्चों को रोशनदान भी नहीं पता होगा। That's a good writer do always. Yeah, he makes you imagine. I used to read, I used to write too. Yeah, so I think that is what a good writer does. वो आपको उस टाइम में ले जाते हैं। You know, what's a good part about watching a movie and reading a book? Reading a book make you feel create a universe in the what you are reading on your mind. Yes. Okay, लेकिन वो अच्छे से अगर लिखा किसी ने तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में take you there. Yeah, that is. When I used to read Ruskin Bond, it took me there to Dehradun. It spoke about so many things which we had seen. Right. It had, you know, like I think it just livens up the whole thing. So I think it's very important. अगर आप उनके लिए कहानियाँ कर रहे हैं, पहले तो करते नहीं हैं, ये क्लासरूम एक्टिविटी होना चाहिए। हाँ, होनी मतलब चाहिए। माम डे आई थिंक देखो पहले क्या हुआ वो तो अब अप्लाई नहीं होता है, बट समहाउ some stories will be give some of additional benefit to the children. I am sure तुमने पंचतंत्रा तो पढ़ा ही होगा। पंच नहीं, पंचतंत्रा ये सब एनिमल्स की कहानियाँ एंड ऑल दैट। और हम लोगों के यहाँ पे अमर चित्र कथा होते थे। सारे हमारे अलग अलग लोगों ने कैसे कैसे, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल इनसाइट इनटू इंडियन कल्चर। तुम्हें पता है ना शाहीन, आई ग्रू अप इन द मिडिल ईस्ट, तो हम लोग के लिए बहुत सारे गिफ्ट अमर चित्र कथा आते थे। तो उस टाइम मैंने बहुत सारी चीजें वहां रह के इंडिया के बारे में सीखी थ्रू दोज बुक्स, यू नो, थ्रू दोज बुक्स। आज भी बहुत सारे स्कूलों में वी आर टॉकिंग अबाउट हैमलेट, वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो the culture which is not really our culture. Why cannot we promote our own culture is my question. Right. And by the way, मैं सबको घर में ये बोलती हूँ, हर घर में कोई ना कोई कहानी होती है। आपके बुजुर्गों की कहानी होती है। आपको अपने बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। They should know उनकी एंसेस्ट्री क्या है। उनको पता होना चाहिए मेरे दादाजी ने कहाँ और कैसे काम किया। They are the real heroes of our lives. True. आजकल क्या होता है, जो हम कहानियाँ जैसे हम डिस्कवर करते हैं या लोगों को बताते हैं, ओके, देयर इज अदर वे टू रिप्रेजेंट। आजकल बहुत इजी हो गया, ओके, एवरी अदर पीपल हैव अ कैमरा, ओके, गुड कैमरा टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ। एंड एज आई हर्ड अबाउट यू, ओके, आपकी यू कम फ्रॉम दी फिल्म इंडस्ट्री बैकग्राउंड। आपकी बैकग्राउंड में लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, ओके। सो आपके हिसाब से सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, what are the background आपके आसपास में है कि आपने क्या सीखा उसमें, how the way you represent की मतलब स्टोरी टेलिंग का जो एक फैक्टर है आपके हिसाब से क्या है? See, storytelling is storytelling. It is creating a human connect. Whether you are writing or you are जिसको कहते हैं दास्तान गोई कर रहे हो, कहानी सुना रहे हो या कहानी दिखा रहे हो या फिल्म दिखा रहे हो, it's all the same. At different levels, at a, you know, कोई चीज larger than life है, which is cinema. तो there are some movies which do brilliantly well, because you can relate to them.
ट्रू. सो कहानी, कोई भी कहानी जो इम्पैक्ट करे आप पे, वो Hmm. अच्छी कहानी है. Okay, yeah, that's आपको also कहानी true. से ये भी सीखने को मिलता है क्या चीज़ आपको नहीं करनी है. Hmm. ये भी समझ आता है कि आपको क्या करना है. Hmm. सो आई थिंक इट्स इन टोटलिटी एवरी कहानी इज अ लर्निंग. Hmm. इट्स जस्ट दैट बजट अलग अलग है, बट कहानी का इम्पैक्ट तो है. एक बात बताओ, आप एक फिल्म इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से आते हो, आपकी फैमिली में कोई है जो फिल्म बना रहा है इस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि कोई भी कहानी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि स्क्रीन की ज़रूरत है, या मतलब सिर्फ आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए टू डिलीवर इन अ राइट पे? खाली स्क्रीन ही कहानियाँ नहीं होती हैं. इवन स्क्रीन से पहले हाँ. कहानियाँ होती है पहले से. हाँ, तो स्क्रीन से पहले कहानियाँ होती हैं. ट्रू. एंड अगर आप याद करेंगे, जब नाटक भी होते हैं वो भी कहानी है. उसमें तो कट भी नहीं होता, उसमें तो रिपीट एक्शन भी नहीं होता. इट्स ऑल देयर, यू नो. वो भी कहानियाँ, दे आर वेरी इम्पैक्टफुल. किसी ज़माने में, अभी भी आई एम श्योर रामलीला वगैरह होती है. हम बचपन में देखते थे. उसका इम्पैक्ट आज तक है. मुझे याद है कि कैसे हनुमान कूद के आ जाते थे. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज everything that is story can be created in different mediums. आज तो जो लोग इंस्टा पे रील्स बना रहे हैं, सपोज रील, सम ऑफ द रील्स आर गोइंग टू मिलियंस. राइट. आजकल वो स्टार बन गए हैं. दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी. अलग भाई, उनकी कोई एक रील इतनी पॉपुलर हो गई, वो चल गई. सो वी डोंट नो व्हाट मेक्स हु पॉपुलर एंड व्हाट काइंड ऑफ अर्निंग अ पर्सन कैन मेक. बट पब्लिक जो है, अब पब्लिक भी बदल गई है. पहले पेशेंटली लोग 3 घंटे निकाल के मूवी देखने जाते थे. Correct. एक मूवी महीनों तक चलती थी, फिर दिनों तक चलने लगी. और अब तो आपको पता ही है कितने दिन कोई मूवी चलती है. ज़्यादा से ज़्यादा 1 month. That's it. वो भी हम ऑन द आउटसाइड बोल रहे हैं. Right. यू नो. एंड आजकल तो इंस्टेंट रील्स का ज़माना है. लोगों के पास पेशेंस ही नहीं हो. जल्दी जल्दी वो कुछ सेकंड में अगर किसी रील ने आपको अट्रैक्ट कर लिया तो कर लिया, नहीं तो आउट. सो ट्रू. या ओके. मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ कहानियाँ ऐसी है, जैसे हम इस तरह की चीज़ें की बात करें. फॉर एग्जांपल, हमने मूवी देखी बाहुबली. ओके. इफ़ यू वॉच अगेन आफ्टर अ मंथ, यू विल डोंट फील बोर्ड बिकॉज ऑफ द कहानियाँ, because of the presentation. आप उसकी बात तो 12 फेल. What a movie. I generally love this movie. मुझे जनरली लगता है कि जिन्होंने भी काम किया इसमें, it's so beautifully represented and it's so much soulful emotions, and हर इंसान वो अपने आप को रिलेट करता है, स्पेशली पर्टिकुलर टूडेज जनरेशन. True. Okay, they already saw themselves. Yeah. Okay, maybe not by their own life, but someone doing on those kind of things. So this is how it's. मुझे लगता है कहानियाँ इस तरह का हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है, और इस तरह का इम्पैक्टफुल होती है एक कहानी कोई भी. That's true. Stories transform, you know. Yeah. Stories transform you. तो कहानी आपकी इतना स्ट्रांग होना चाहिए. हाँ, कहानी स्ट्रांग होएगी तभी उसको उस एसेंस से देखा जाता है. जो कहानी स्ट्रांग होती है उसको आप देखोगे कि यू कैन सी इट ओवर एंड ओवर अगेन, या बार बार सुन सकते हो. वो इसलिए सुन सकते हो क्योंकि उसमें कुछ डेप्थ है. मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो कि आप जनरली वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. आई एम पर्सनली इंस्पायर्ड. ओके. डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, ही इज इन लार्जर देन लार्जर. मतलब उसके ऊपर मेरा कुछ नहीं है. आई थिंक वी ऑल पर मैं अपनी भी एक पॉइंट रखूंगा इसमें, दैट विल बी लेटर. लेट्स कम टू द पॉइंट. मिस्टर अब्दुल कलाम सर, उनकी लाइफ, इफ यू just think of his childhood, okay, from the childhood scientist, okay, school से scientist से presidents of India, okay, and still have the thought process he till the time he end his life not in the particular nations, okay. जितना मैंने सुना उनके डेथ इंडिया में नहीं हुए, okay. He eventually end of the time भी वो देते हुए गए दूसरों को एजुकेशन. So मुझे लगता है he himself created his own story. True. Not that anyone has created. Right. Come to the my point. Okay, मैं उनसे नहीं तुलना कर रहा हूँ. मुझे भी, because I take the inspirations. Okay, I have an idea of
something, okay, I can go, मतलब मैं एक business idea पे लेके लोगों के पास गया, little bit of idea, and I just said that this is, okay. जो मुझे जनरली फील हुआ, समझ आया, मैं वो बता रहा हूँ, ओके, इनसाइट। तो मुझे लगा कि मुझे एक पार्टनर चाहिए जो साथ में करके ग्रो करेंगे, ओके। एंड सम पीपल हैव मेंशन्ड दैट योर आइडिया इज सो स्ट्रॉन्ग, इट्स मे बी वर्क, and you might get a amount, okay, investment also with this idea, okay, and हो सकता है उससे आप आगे बढ़ सकते हो, आपको सही जगह पहुंचना चाहिए। I came back home, then I thinking, is it interesting point or negative point? मुझे तब समझ आया कि मेरा स्टोरी क्या है। मेरा स्टोरी, अगर मैं किसी से पैसा लेकर अगर मैं अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाऊं, इज दैट गोना बी सक्सेसफुल रियली? तो मैंने क्या किया, मैंने नहीं, and to create my own story. It's okay if I not get that much of successful, but what I have today, I'm taking a first step, okay, and it will be give me a result because I believe in myself, and it will be work because I strongly believe that. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोरल ऑफ द स्टोरी में कि आपकी कहानी से आप खुद लिख सकते हैं। आई हर्ड अबाउट you have been gone through so like depth, आपकी जो हेल्थ का इशू था जो मैंने सुना, कैन यू टेल मी अबाउट दैट, लाइक हाउ इट्स हैपन, लाइक कैसे आपने उस टाइम क्या फील करा, व्हाट आर द रेवोल्यूशन यू फील इन योर पर्सनल जर्नी, इफ यू वांट टू शेयर? See, very well pointed out. Even I have said this many a times. We're all directors, editors, actors, writers of our own story. True. And we have the power to change them whenever we want. Whenever we are ready, things will change. Remember that I'm not a tree. If I'm not happy with something, I can move. Many years ago, it's been a while now, I was diagnosed with a condition, an autoimmune disorder called lupus. Okay. Lupus. And it's a very complicated disease. Once it is inside you, it just doesn't leave you. Oh. It's there. Okay. So when people say, hey, I am a survivor, I always say, I am a warrior. Because I fight with it every day. What exactly happened that moment? Like आप सुना है कि जो मैंने सुना, मुझे आपसे जानना कि what are this, आप ऐसे सिचुएशन में चले गए थे जहाँ से आपको लगता नहीं था you will get out of anyways? Yes. It is tough because one day to a next day, it's very difficult to pull on. Okay. And उस टाइम तो genuinely मुझे लगा था कि I don't know if I'll, stay alive for a long time. Okay. I thought I was just going. Was उस टाइम आपको क्या फीलिंग आता था? I was very sad. You just want to laugh for that moment, I guess. I was so sad I can't even explain to you what I was going through. I had become a very different person. I had become depressed. I had become sad. I was broken. I felt कि मेरे साथ ही क्यों, जो अक्सर लोग सोचते हैं। ये सब फील करने के बाद I don't know, but one day I said no more of this and we have to change this. And trust me, I had to work really hard on myself. आज मैं आसानी से कहूँगी कि हाँ भाई हो गया ट्रांसफॉर्मेशन. इट जस्ट डजंट हैपन लाइक दैट. ऐसे बैठे बैठे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है. यू टू वर्क टुवर्ड्स इट. बहुत मेहनत करी मैंने, अपने आप को हील करा, अपने बहुत लोगों से हीलिंग भी ली उस टाइम. एंड आई वांटेड टू हील. इनिशियली I really thought I was just going, oh, कहते हैं ना, when you reach the rock bottom, the only way is only upwards. Can I ask you one little question here? Yeah. Once you come to the heal, what's exactly heal? Particular point जो आपको heal किया? You know, Shaheen, healing never happens in a straight line. It happens in a circle. It happens in waves. True. You have to let go. You have to forgive people. You have to
forget things. Only when you have done all this, I love that. Yeah, that is the so fact and truth. yeah, only when you are able to do this, you heal yourself. So there are times when you will go in circles, there are times when you will go like this, there are times you go back, there are times you go forward, there are times then, but there are moments when you come in nowness. And that's when you feel जो चला गया वो चला गया, जो आने वाला है उसका पता नहीं, जो है वो आज है. आज, do I want to be happy? Yes, of course. I want to be happy. And that's a choice I make every day. I love that. It's a choice I make every day. Do I want to be sad? Do I So want to be happy? here's I want to the- be a happy person. Yeah. So here's the point. There's so many broken heart people are around. Yeah. Okay. So मुझे लगता है I think this is the best line how you should get out of this. Just let yourself know. Yeah. Acceptance. I want to be happy. I want to be happy. I want to be happy Yes. again. I want to be happy. As simple as that. Again and again and again. I want to be happy. I have a choice. You have only choice. You have a choice. Either you want to be happy or you want to be sad. I want to be happy and I choose it every day over being unhappy. Because जब आप खुश होते हो ना, खुश होते हो, तब आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ी आसान लगती हैं. Fact है. So, जब आप so दुखी true. हो तो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगेंगी ना. सो आप कैसे चाहते हो लाइफ? आप चाहते हो यार स्मूथली निकल जाए. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, कि स्मूथली निकल जाए. You know, it's important. And that's only possible if I choose happiness every day. And ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ये कोई हमारे लिए नहीं कर सकता. Right. Right. It's so far long journey to everyone, right? Okay. And find a meaningful life. It's one of the way of accepting yourself. Yeah. That I understood from you. Come to the point, okay. I have a few questions, which is very, very basic. मुझे again जानना है. I asked to every guest who were coming our show, and you have seen a lot of differences, okay, differentiations in personal life and the other aspect which is you're working in socially. Okay, what is the relationship according to you in the like couple for a better relationship? Conversations, communication. Okay. It's a very important part of any relationship, especially amongst a spouse. बात करना बहुत ज़रूरी होता है. और दूसरी बात ये है, you have to plant each other's life in such a beautiful way, which is दोनों के अपने अपने सपने होते हैं. You know, So true. वो उसको वाटर करे, दूसरा दूसरे को वाटर करे. And it's not about, love is not about looking at each other. वो तो कुछ टाइम बाद खत्म हो ही जाता है. It is looking in a similar direction. You know, और लोग कई बार लोग relationships को for granted ले लेते हैं. वो उन्हें नहीं करना चाहिए. Okay. Okay. And you know, एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी, you know, कि ये बात दूर तक पहुँचे. आज तक हम लोग यही कहते थे कि ओ भाई इस बंदे ने इस लड़की के साथ ऐसे किया. आजकल लड़कियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है. So true. जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं हम बराबर हैं. हम बराबर कैसे हैं? कितने ऐसे देखे आगे कि रोड पे काम कर रहे हैं नहीं, फीमेल? आप मुझे ये बताइए हम बराबर कैसे हैं? हम बराबर नहीं हैं. नहीं है. कुछ चीज़ें सिर्फ औरतें ही संभाल सकती हैं और समेट सकती हैं जो आदमी नहीं समेट सकते. So true. और कुछ चीज़ें जो आदमी कर सकते हैं जो औरतें नहीं समेट सकती. इसमें कोई फेमिनिज्म की बात ही नहीं है. नहीं है. और दूसरी बात ये है, जब ये बोलती है ना ओ सब कुछ इक्वल इक्वल होना चाहिए, सब कुछ इक्वल इक्वल, अगर हम लड़कों को ये सिखा रहे हैं कि आप लाइफ स्किल सीखिए और अपनी वाइफ्स का हाथ बटाएं, और हम कहते हैं कि भाई लेडीज़ तो बाहर जाके कमा ही रही हैं, मेरा क्वेश्चन उन लेडीज़ से सिर्फ एक है, जब आदमी घर तनख्वाह लाता है वो अपनी पूरी फैमिली पे वो तनख्वाह लगाता है. हाउ मेनी विमेन डू दैट? You know, I just got to remember a movie of Ki and Ka. Okay, I have not seen the film. Ki and Ka is a Kareena Kapoor and क्या नाम है, अर्जुन कपूर. Okay. अर्जुन सिंह, अर्जुन कपूर. Okay.
सो कियन का मूवी में क्या होता है, ओके, the boy who got married to the woman, girl, okay, she want to become a successful, Okay. okay, and he helped him and he got, take care of home and everything. How It's sweet. quite so beautifully shows that, Yeah. okay, what's important, and there is nothing like existing about feminism. मुझे लगता है फेमिनिज्म वो है, It's so highly overrated. या It's highly overrated. हर इंसान को अपना हक चाहिए, हर इंसान अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है, मगर कोई इंसान है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खड़ा हो रहा है? कोई कह रहा है कि भैया चलो हक की बाद में बात करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? so true. How many people are standing and saying कि please give me responsibility? Does they know about responsibility? Whoever said that feminism, I don't know. they doesn't. I don't think so. They really doesn't. उनको नहीं पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. Yeah. जो भी फेमिनिस्ट की बात करते हैं ना, ओके, सबसे पहले से वो अपने तक ही रहता है. True. ओके, लेकिन जो फेमिनिज्म की बात नहीं करता और एक्सेप्ट करता ना, वो समाज के बात भी जानता है. Of course, it's very important. अगर मैंने कितनी लेडीज़ को देखा, आई एम सॉरी टू से, बट देयर सो मेनी विमेन, वो बाहर जाके वो क्या कहते हैं, गुरु के आश्रम में जाके बर्तन धोएंगी और सेवा करेंगी, मगर घर में जो सास ससुर बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं, उनको खाना देने से उन्हें प्रॉब्लम है. Yeah, that's quite. Is it not pseudo? It's very pseudo. आप घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोगों को बाम लगा रहे हैं सिंपली, एंड घर पे जो हैं उनको पूछ नहीं रहे. So true. Okay, रिलेशनशिप की बात करें तो आपको क्या चीज़ जो लगता है अभी मार्केट में और पूरी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी प्ले करता है इन रिलेशनशिप? सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी लाइज प्ले करता है. आजकल लोग सच नहीं बोलते हैं. आजकल लोग सच नहीं बोलते. हाँ, आजकल बहुत झूठी और बनावटी दुनिया है. जो सच बोलता है तो वो तो सोचते हैं कि कुछ है ही नहीं इसमें. बनावटी दुनिया है तो सबने छल है, अपने अपने मुकुट पहन रखे. ये तो आपको इंस्टा रील से ही अंदाज़ा हो जाएगा कितने फिल्टर्स लगाते हैं हम. इंटरेस्टिंग. You don't want to live real. जो I remember my father saying this to me कि सही और सच बोलना बहुत आसान होता है, झूठ बोलना ऐसा वाला रास्ता है, कॉम्प्लिकेटेड. आपको मैं इतना बताऊं, दूसरे इंसान को मैं इतना बताऊं, फिर बाद में भूल जाऊं कि मैंने इसको क्या बोला और उसको क्या बोला. मगर सत्य तो सत्य ही है. हो सकता है शुरू में आपको बुरा लगे कि यार इसने ऐसे कर दिया, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रिस्पेक्ट मी. So true. I agree with that. But if you realize that the person lies over and over again, you lose your integrity. Right. वो सच भी बोलेगा तो भी आपको लगेगा कि यार कहीं झूठी ना बोल रहा हूँ. Agree. और आई थिंक सबसे बड़ा जो टॉक्सिसिटी में प्ले करते हैं वही आपकी घुमा फिरा के बात आती है. That's a lie. It's a Because lie. we just lie. Deception, lies. That's the worst thing in any And relationship. To me, according to me, मुझे लगता है कि if you ask me the relationship, what are the relationship should be? I would say relationship, it's all about responsibility. Okay, it's all about responsibility in both of you, like Of not course. only for the one sided. Yeah. Okay, you should know that person is care for you, Yeah. and you should care, and the same goes to the other person. Absolutely. Okay, you should. Okay, if they have gone through in some emotional trauma or something like that, whatever about your present, past, XX, okay, have open conversation, give the points which is related. Okay, and hearing is a responsibility, also one of the key. Of course. Okay, so मुझे लगता है okay, like आजकल इसको लेके भी बहुत कंसर्न आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी आता है, अगर एक इंसान नहीं कमाता तो दूसरा को हेल्प करना चाहिए. हाउ? ऑफ कोर्स, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता. करेक्ट. इट्स मीन्स ये होता है कि अगर इफ आई एम नॉट अर्निंग
okay, I should help the other person to grow their self. Absolutely. If It is like we're building it together. We're a team. Correct. So Okay. ये सोचना कि ओह तुम नहीं कर रहे, तुम घर बैठे हो, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, नहीं, the other person is supporting you Correct. by being there. True. Yeah. Okay, so this is my belief. Yeah. Okay, so come to the point. Okay, बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे चीज़ों पे लाइफ में बहुत लोगों को ये लगता है पैसा बहुत बड़ा रोल पे करता है लोगों की लाइफ में. मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि पैसा लोगों को खुशी देती है? अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर लोग सारे खुश होते. उनमें अंदर ब्रोकन पार्ट नहीं होते फैमिली में. बिल्कुल. They have broken families, they have broken hearts, they also have disease, you know. So many people, so many names I can quote that will say they have achieved the best in their life and they are still not happy. So many people we thought are so happy when we saw these huge hoardings of great actors. They committed suicide, some of them. So, Yeah. Because they were not happy internally. So happiness, देखो थोड़ा बहुत पैसा तो ज़रूरी है, पर एट द एंड ऑफ द डे जो इंसान बहुत कमा रहा है, कोई वो हीरे मोती थोड़ी ना खाता है, वो भी खाना ही खाता है. बंगला कितना भी बड़ा हो, रात को एक ही कमरे में सोएगा. टर्न्स लेके अलग अलग कमरे में सोने नहीं जाने वाला. So what I'm trying to say is money is important, but it's not important. It's not the only thing that makes you happy. That's definitely a myth. It's not even true. People should realize there is something else that is actually the real reason of your happy life. Okay. आपके हिसाब से क्या लगता है कि एक ह्यूमन को सबसे ज़्यादा खुशी क्या देता है? Loved ones. I think मुझे ऐसा लगता है love, it's so beautiful thing in this earth. When you love, when you love your kid, that's the super happiest moment. Look at me, kid bola, and I am like laughing, beaming. Yeah, because I heard that your story. Okay. Yes. When you love your partner, you generally feel happy. Genuinely, when you love someone. Okay. When someone love you, you feel the warm. Of course. Okay. So मुझे लगता है it's the most beautiful thing that is the relationship. It's a love and the human connection to each other. Absolutely. Completely agree with you. And that is the most precious thing in this earth we have. Unfortunate truth is we are abusing this. Yes, we are. It's so bad. It is extremely sad. Yeah. We don't realize that जो चीज़ एक्चुअली आपको खुशी देती है वो आपका प्यार है with your loved ones or people who matter to you. Or when you don't have time for them, or if you take them for granted, or if you break up with them, it will create dent. Right, Definitely. Right. You will have a dented life. And there are times Can you tell me, sorry, please, go on. There are times people can go into depression, isolation because of that. That was my question. Okay. Why people feel lonely? People feel lonely even amidst crowds, as I said earlier. Like why people are feeling lonely? They're feeling lonely because they are not really with you. In sense, हो सकता है वो पार्टी में हो, enjoy नहीं भी कर रहे, बस वो हैं. You need to understand. They're not present. They're not present there. They're somewhere else. There is a huge FOMO, fear of missing out. अरे वो भी गए हैं और मैं नहीं गया. So they are always feeling less. And society is making them feel, अरे अभी तक तुम वहाँ घूम के नहीं आए. Oh, you don't have that best dress that's available. You don't have the best shoes. It's all in advertising. It's being plonked on your face all the time. People are throwing things. If you don't have this, you're not happy. तुम्हारे पास ये गाड़ी नहीं होगी तो तुम हैप्पी नहीं रह सकते. तुम्हारे पास ये नहीं होगा तो तुम हैप्पी नहीं हो. तुम्हारे पास एटलीस्ट 3 bedroom अपार्टमेंट तो होना ही चाहिए, तब तुम कहीं जाके हैप्पी होगे. जो साइकिल वाला है वो साइकिल छोड़ के स्कूटर चाहता है, जो स्कूटर वाला है उसको मोटर बाइक चाहिए, जो मोटर बाइक वाला है उसको गाड़ी चाहिए, जो गाड़ी वाला है उसको
एक आल्टो से सीधा मर्सिडीज या BMW चाहिए, तो रेस तो ऑन है, वो कब खत्म होगी? So true. भाई सारे ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट है, गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, बट वो भसड़ हो गई है. As simple as that. I'm gonna put it here one more thing, which is connect with your words. Okay, that is आपने बोला कि गाड़ी, साइकिल ये चाहिए, फिर बाइक चाहिए, फिर कार चाहिए. So same play the role in money. मुझे ऐसा लगता है. Okay. Today, for example, you're earning per year. Okay. For example, like 5 lakh in a month, in a year. Okay. अगर कोई कमाता है, okay, ठीक ठाक कमाते हैं, फॉर दैम दे आर द वे दे लीव, ओके, अकॉर्डिंगली. अगले 5 साल बाद ना वही इंसान का जो प्रेजेंटली उसका भूख है ना कि मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी, 10 लाख हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा. अगर 10 लाख उस प्रेजेंट टाइम में हो, ओके, 5 की जगह 10 हो, अगले साल में उसका वही एक्सपेक्टेशन रहेगा. अगले 10 साल में वही, मैं 5 साल की बात नहीं, 10 साल में भी वही एक्सपेक्टेशन रहेगा. या 5 साल बाद यू विल हैव द सेम हंग्रीनेस to have the money. कि मेरे पास अगर 20 लाख होता पर ईयर या 25 लाख होता, तो पैसा जो है ना, पैसा लोगों को से मुझे लगता है कि पैरालाइज कर देता है. उसको इस तरह से लो टू बेटर लिव लाइफ. आपकी जो नीड है वो पूरा करे, पर्टिकुलर अमाउंट आप सेव करो, ओके, जो कि कल के लिए आपको हेल्प करे. ओके, कुछ सडन थिंग यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली टू मेक योर लाइफ बेटर. Absolutely. वो कहते हैं ना, you must have heard this one. Focus on need. Don't crave for greed. True. Yeah. So this is, I believe, about the money. Yeah. Okay. All of the conversation, it was amazing. I want to know, is there any favorite quote you have? Well, there are many quotes I love. Which but there inspire is one you? Quote, yes. There is one quote that's very close to my heart, which is every story counts, and one story can change many lives. So true. This is my favorite quote. Here is a coming to the God. मुझे पता नहीं कि अभी याद आया इसी पॉइंट पे. वर्ड्स भगवान कृष्णा, भगवान राम, जो भी जितने सारे हमारे भगवान हैं, they are all eventually the story. Absolutely. They play so well in our life. Yes. So I'm so connected with the point, and so true. Yes. Okay, interesting. Yeah. Okay, is there any best advice you ever received or you gave? That's a common question, by the way, but I want to know, is there any best advice you ever have or received? Well, the best advice is so much advice we get. Advice तो free की होती है, तो सभी देते हैं. But the best advice that's very close to my heart is, and I think I shared it with you earlier also, which is that live life peacefully, and see, eventually we are all going to die one day. But it is this journey, how we make it happen, and we have a choice whether we want to live happy or we want to be sad. Right. And that's exactly what we are going to spread in this world. I choose joy and I want to spread smiles. That is my mission for my life. Interesting. Okay. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you so much for joining me. Thank you so much for coming to the Open Talk Show. Thank you so much, Shaheen, for having me over. And this was long due. I'm so glad that this has happened today. Finally, it's happened. I'm glad that you came. I literally, I had a lot of different episodes. I really enjoyed this episode. I loved it too. This is like one of my favorite things that I could have done. Been me, myself, and presenting what I am from my inside. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me.